Question number 45. R Limited has spare capacity in two of its manufacturing departments, Department 4 and 5. So must be several departments. Out of those, these two departments have a spare capacity. A 5-day week of 40 hours is worked, but there is only enough internal work for 3 days per week, so that 2 days per week, that is 16 hours, could be available in each department. So how much spare do we have? So it said that we have in total 40 hours, 5 days of 8 hours each. Out of these 40 hours, we have enough work only for 3 days, that is 24 hours. And the balance 2 days, that is 16 hours, is available in each department every week. R Limited has sold this time to another manufacturer, but there is some concern about the profitability of this week. So right now what R Limited has done is they have subcontracted these hours, they have sold these hours, hired these hours to some other person. But now they have some concerns for that. The accountant has prepared a table giving the hourly operating cost in each department. The summarized figures are given below. So for both the departments we have hourly cost given, power cost, labor cost, overhead cost. The labor is paid on a time basis and there is no change in the weekly wage bill whether or not the plant is working at full capacity. It said that plant, even if it is working at full capacity or even if it is not, there is no change in the labor cost. That means the labor cost is fixed, the labor cost is committed cost, उसमें कोई change नहीं होगा even if you have a spare capacity. The overhead figures are based on the firm's current overhead absorption rates, fixed and variable when the departments are operating at 90% of full capacity. Overhead जो आपको दिए ऊपर, overheads per hour, they include fixed as well as variable overheads. Labor हमने देखा वो पूरा fixed है. Overheads में fixed भी है और variable भी है. And it is said that जो absorption rate निकाला गया है, it is being calculated on 90% of full capacity. 90% capacity के basis पे हमने overheads absorption rate निकाले हैं. Assume 50 weeks per annum. The budgeted fixed overhead attributed to Department 4 and 5 are 36,000 per annum and 50,400 per annum. These are the budgeted fixed overhead. So we have the budgeted fixed overheads, we have the total capacity, we have the capacity utilized. So we can calculate the overhead absorption rate for fixed overheads. Fixed overheads का absorption rate निकाला जा सकता है. Budgeted overhead divided by the normal capacity. Normal capacity बोला है total का 90% है. So we can calculate overhead absorption rates for fixed cost. Total overhead का absorption rate भी हमें दिया हुआ है. In the table, the rates given are for the total overheads. So when we deduct fixed overheads absorption rate from these total overheads, we will get the variable cost per hour. Next, as a short-term measure, the company has been selling processing time to another manufacturer at rupees 70 per hour in either department. अभी तक जो वो करते आ रहे हैं, when they are selling or they are hiring the spare time to other department or to others, outsiders, बोला गया है वो लोग 70 रुपीस पर आवर के रेट पे अभी तक हायर पे देते हैं. Till now they are providing the spare capacity on hire at 70 rupees per hour in both the departments, whether department 4 or 5, दोनों में rate same है. Then the customer is willing to continue this arrangement and to purchase any spare hour in either department. To purchase any spare time available, but R Limited is considering introduction of a new product on a minor scale to absorb the spare time available. But R Limited, वो again repeat हो गई है line. So it said that customer अभी भी hire arrangement continue करना चाहता है. He still wants to continue with that. But R Limited अब इसकी जगह hire पे देने की जगह now they are considering production of another minor product in the spare capacity. जितना spare time है उसमें एक दूसरा छोटा सा product बनाने की इच्छा है उनकी. Each unit of the new product would require 45 minutes in Department 4 and 20 minutes in Department 5. The variable cost of required input material
is rupees 10 per unit. Now it said that every unit of the new product which you will make, it will take 45 minutes in fourth department and 20 minutes in fifth department. So we can find out the maximum quantity which you can produce. You will first find out the spare time. स्पेयर टाइम के अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करोगे कितने क्वांटिटी आप बना सकते हो. एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा है, तो जो टाइम अवेलेबल है उसमें कितनी क्वांटिटी बनाई जा सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन. देन इट सेड द न्यू प्रोडक्ट विल कॉस्ट 10 रुपीज फॉर रॉ मटेरियल. मटेरियल कॉस्ट लगेगा हमारा 10 रुपीज पर यूनिट. The market study indicated as follows: with a selling price of rupees 100, demand would be 1500 units per annum. With a selling price of 110, demand would be 1000 units per annum. With a selling price of 120, demand would be 500 units per annum. So we have three different range. अगर आपका selling price अलग अलग होता है तो आपकी demand भी अलग अलग हो जाएगी. Calculate the best weekly program for the spare time in two manufacturing departments. दोनों manufacturing departments के spare time के लिए क्या best होगा? Should we hire them or should we produce the new product? Second, determine the best price to be charged. So if you are selling the new product, what will be the best price charge? Among the three selling prices, which selling price will you choose? And third, quantify the weekly gain that this program and price should yield. जो भी आपने डिसाइड किया है प्रोग्राम और फिर प्राइस, सो डेफिनेटली अगर प्राइस भी डिसाइड करना है तो इसका मतलब हमारा शायद ये नए प्रोडक्ट को बनाने वाला ऑप्शन शायद ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना चाहिए. तभी आगे वो बोल रहे हैं कि आपने जो प्रोग्राम सिलेक्ट किया और उसका प्राइस भी जो आपने सिलेक्ट किया, क्योंकि हायर अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो प्राइस हम सिलेक्ट नहीं करते, वो तो दिया हुआ है. तो अगर हमें सेलिंग प्राइस सिलेक्ट करने के लिए भी बोला है, दैट मीन्स हमारे लिए मोर प्रॉफिटेबल होगा टू मेक दैट न्यू प्रोडक्ट. अगर हम वो सिलेक्शन करते हैं, इन दैट केस व्हाट विल बी द वीकली गेन, एवरी वीक हाउ मच वी विल गेन एडिशनल टू व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग. सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्या हमें स्पेयर टाइम को हायर पे देना चाहिए या फिर हमें नया प्रोडक्ट उससे बनाना चाहिए. So we have two departments, Department 4 and Department 5. दोनों डिपार्टमेंट के हमें कॉस्ट दिए हुए हैं. सबसे पहला पावर कॉस्ट. पावर कॉस्ट के बारे में कुछ अलग से तो नहीं बोला है, बट इन जनरल हम सोच सकते हैं कि दिस शुड बी वेरिएबल. जितने टाइम डिपार्टमेंट में काम होगा उतने ही टाइम पावर कॉस्ट भी लगेगा. So if we consider this power cost as variable, the cost per hour is 40 rupees and 60 rupees. Next, labor cost. Labor cost बोला है it has to be paid or it will not reduce even if you have a spare capacity, even if you do not utilize the entire capacity. That means this is fixed. फिक्स है तो हमारे डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे. आप स्पेयर कैपेसिटी एज इट इज रहने दो तो भी उतना ही लगेगा, आप उसको हायर पे दे दो तो भी उतना ही लगेगा, और आप उससे नया प्रोडक्ट बना लो तो भी उतना ही लगेगा. इट्स नॉट चेंजिंग एनीथिंग. ये इररेलेवेंट कॉस्ट हो गया हमारे लिए, सो विल नॉट कंसिडर दैट. नेक्स्ट इज ओवरहेड कॉस्ट. ओवरहेड में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल है. जो फिक्स्ड वाला पोर्शन है वो अगेन हमारे लिए इररेलेवेंट होगा for our decision making, for our choosing of options. हमारे लिए relevant है केवल variable cost. तो let's find out the variable cost. कैसे find करेंगे हम variable cost? तो हमें दिया हुआ है budgeted fixed overheads. दोनों डिपार्टमेंट्स के budgeted fixed overheads हमें दिए हैं as 36,000 and 50,400. इसके बाद हमें दिया है वी आर यूटिलाइजिंग 90% ऑफ कैपेसिटी. मतलब हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है टोटल का 90%. टोटल हमारे पास पूरे साल में 50 वीक्स है. पर वीक
we have 5 working days और say per week we have 40 hours, उसका 90% हमने बजट किया था, that means 1800 hours. So normal capacity is 1800 hours. We had budgeted that we will be working for 90% capacity, that is 1800 hours. हम अपने फिक्स्ड ओवरहेड्स को नॉर्मल कैपेसिटी पर ही एब्जॉर्ब करते हैं. दिस इज बीइंग द नॉर्मल कैपेसिटी. वी विल फाइंड फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. ₹20 per hour, and this will be 28 rupees per hour. Every hour we are going to absorb 20 and 28 rupees. This is the fixed overhead. Fixed was not relevant for us. What is relevant is the variable portion. Fixed हमने calculate किया है to come to the variable portion. Total overheads का absorption rate हमें दिया हुआ है. Total overheads का absorption rate is given as 40 and 40. So we can say variable overheads are 20 per hour and 12 per hour. So we have these two variable cost. Presently जब तक हम हायर पे दे रहे हैं हमारे पास ये दो ही वेरिएबल कॉस्ट है. नया प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो उसका मटेरियल कॉस्ट एडिशनल लगेगा. Total variable cost will be 1 plus 2, that is 60 rupees per hour and 72 rupees per hour. जो प्रेजेंट हमारा सिचुएशन है उसमें हर एक घंटे पे इतना वेरिएबल कॉस्ट हमें लग रहा है. इफ वी आर गिविंग दिस ऑन हायर, जो हमारा पहला ऑप्शन है, इफ वी आर गिविंग इट ऑन हायर, हायर चार्जेस हमें कितने मिल रहे हैं? 70 रुपीज. हायर चार्जेस हमें दिया हुआ है, दोनों डिपार्टमेंट के हैं 70 रुपीज. दैट मीन्स हाउ मच आर वी गोइंग टू अर्न? अगर हम हायर पे दे देते हैं, in that case we can earn a contribution of 10 rupees per hour from department 4, whereas a contribution of minus 2 rupees per hour from department 5. अगर हम हायर पे देने जाते हैं तो डिपार्टमेंट 4 पे तो हमें हर एक घंटे पे 10 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिलता है. डिपार्टमेंट 5 में द कंट्रीब्यूशन इज नेगेटिव. दैट मीन्स इट्स बेटर कि आप हायर पे मत दो, स्पेयर कैपेसिटी एज इट इज रहने दो. Neither will you receive 70 rupees nor will you spend 72 rupees. आपका 2 रुपए का नुकसान बच जाएगा अगर स्पेयर ही पड़ी रहेगी कैपेसिटी. तो हायर पे देने की वजह से आपको ये वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ता है 72 रुपीज का, और उसके अगेंस्ट में रिसीव होता है केवल 70 रुपीज. तो हायर पे दोगे तो उल्टा आपका लॉस हो रहा है. डिपार्टमेंट 4 में यू कैन गिव इट ऑन हायर. Department 5 में there is a loss of 2 rupees, so we cannot give the spare capacity on higher for Department 5. Spare capacity of Department 5 cannot be hired as it is resulting in loss of 2 rupees per hour. ये तो हो गया हायर वाला ऑप्शन. नाउ द सेकेंड ऑप्शन विच वी हैव इज प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. जो नया हमारा यूनिट है उसको प्रोड्यूस करने का दूसरा ऑप्शन है हमारे पास. If we are not producing the new product, that is the name of the product is not given, na?
इफ वी आर नॉट ऑप्टिंग फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तब हम अपनी फोर्थ डिपार्टमेंट की स्पेयर कैपेसिटी को हायर पे देंगे, फिफ्थ डिपार्टमेंट की तो तब भी हायर पे नहीं देंगे. दैट मीन्स हम बोल सकते हैं अगर हम न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वी आर फॉरगोइंग दिस कॉन्ट्रीब्यूशन. इफ वी आर गोइंग फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट दैट मीन्स वी आर फॉरगोइंग दिस कॉन्ट्रीब्यूशन. ये लॉस तो हम करते ही नहीं. अगर हमें न्यू प्रोडक्ट नहीं भी बनाना होता तो हम डिपार्टमेंट 5 को एज इट इज छोड़ देते. जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उतना करके बाकी का हम एज इट इज ही छोड़ देते. लेकिन डिपार्टमेंट 4 में हम हायरिंग पे देते जो भी बैलेंस कैपेसिटी है. इसका मतलब अगर हम नया प्रोडक्ट बनाने चाहते हैं तो हम डिपार्टमेंट 4 की कैपेसिटी को हायर पे नहीं दे पाएंगे. So this contribution will be your opportunity cost. Opportunity cost is nothing but the contribution foregone for the next best alternative. ये दूसरा alternative था जिससे ये contribution हमें मिल रहा था. Now we are foregoing that. यही हमारा opportunity cost हो जाएगा. So for this evaluation of the new products offer, whether we should produce the new product or not, we can take this 10 rupees as our opportunity cost. 10 rupees per hour of department 4 is our opportunity cost. अब अगर हम R limited देखें, so R limited का हमें अलग अलग सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. कॉस्ट के बारे में क्या क्या दिया है? So we have a cost of 10 rupees for material. For the new product, अगर हम नया प्रोडक्ट बनाने का ऑप्ट करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट इज गिवन एज 10 रुपीज. ओके. देन पावर कॉस्ट. पावर कॉस्ट आपका लगेगा कितना लगेगा? तो बोला गया है डिपार्टमेंट 4 में 45 मिनट्स लगेंगे एक यूनिट बनाने में. एक यूनिट बनाने में डिपार्टमेंट 4 में 45 मिनट्स लगेंगे. और आपको जो पावर कॉस्ट ऊपर टेबल में दिया है 40 रुपीज, वो एक घंटे का पावर कॉस्ट है. सो वी कैन से पावर कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 4 विल बी 40 इंटू 45 अपॉन 60. That is 30 rupees. एक घंटे का 40 तो 45 मिनट्स का 30 रुपीज. डिपार्टमेंट 5 में भी हमें पावर कॉस्ट लगेगा. इट इज 60 रुपीज पर आवर. और डिपार्टमेंट 5 के हम यूज करेंगे केवल 20 मिनट्स एक यूनिट को बनाने के लिए. सो वील हैव 60 इंटू 20 अपॉन 60 दैट इज 20 रुपीज. दोनों डिपार्टमेंट का ही हो गया पावर कॉस्ट. इसके बाद दूसरा लेबर कॉस्ट, वो तो फिक्स है. आप नहीं भी बनाओगे ये प्रोडक्ट तो भी वो लगेगा ही. इट्स नॉट एडिशनल. हमारे डिसीजन मेकिंग में वो नहीं आएगा. देन ओवरहेड. ओवरहेड में अगेन वी हैव फिक्स्ड एंड वेरिएबल. तो फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हम कंसिडर नहीं करेंगे. वी विल कंसिडर ओनली द वेरिएबल ओवरहेड जो हमने इधर निकाले. बट अगेन दीज आर पर आवर और हम निकाल रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट वी आर फाइंडिंग आउट. और ये जो कॉस्ट है ये एक घंटे के कॉस्ट है. सो वील हैव टू कन्वर्ट देम. वेरिएबल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट 4 20 रुपीज पर आवर. एक घंटे का 20 तो 45 मिनट्स का कितना? 15. Similarly for department 5 per hour it is 12. So for 20 minutes it will be sure. Shall be 4 rupees per hour. इसके अलावा हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है 10 रुपीज पर आवर का डिपार्टमेंट 4 में. डिपार्टमेंट 5 में कुछ नहीं लग रहा है. डिपार्टमेंट 4 में एक घंटा अगर काम करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है 10 रुपीज. अगर एक घंटा हम न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं सो वी आर फॉरगोइंग दिस 10 रुपीज. डिपार्टमेंट 4 में एक यूनिट बनाने में 45 मिनट्स लग रहे हैं
तो 45 मिनट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 4 10 into 45 divided by 60 7.5. So these will be the total variable cost per unit. ये एक यूनिट के वेरिएबल कॉस्ट है. कितना? 86.5. अभी सेलिंग प्राइस देखो. सेलिंग प्राइस इज गिवन एज 100, 110 एंड 120. आफ्टर कंसिडरिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी आर रिसीविंग सम कंट्रीब्यूशन. इसमें जो कंट्रीब्यूशन हम अर्न कर रहे थे उसको कॉस्ट की तरह अज्यूम करके भी हम यहाँ पर कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं. दैट मीन्स दिस इज मोर बेनिफिशियल. सेलिंग प्राइस चाहे 100 हो, चाहे 110 हो, चाहे 120 हो, कुछ भी रख लो, वी आर गेनिंग समथिंग मोर देन दी हायर चार्जेस. आया समझ में? सो दैट मीन्स दिस वन, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज मोर बेनिफिशियल देन दी present strategy of giving the spare capacity on hire. Selling price per unit is 100 or 110 or 120. Thus, after considering opportunity cost, we are gaining contribution of rupees 13.5 or 23.5 or 33.5 per unit depending on selling price per unit. So we should, or R Limited should, go for manufacturing R Limited should go for manufacturing of new product rather than hiring option. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू गिव द सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच इज मोस्ट फेवरेबल. 3 प्राइसेस हमें दिए हैं, उन 3 में से कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा. सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा आप कितनी क्वांटिटी बेच सकते हो. आपके पास जो स्पेयर कैपेसिटी है उसमें आप कितने यूनिट्स बना के बेच सकते हो. इट माइट बी कि आप पूरी डिमांड फुलफिल ही नहीं कर पाओ. डिमांड भले ही 1500 है, आप बना पा रहे हो केवल 1100 यूनिट्स, या से डिमांड 1000 या 1500 है पर आपका मैन्युफैक्चरिंग हो पा रहा है केवल 800 यूनिट्स. सो फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू फाइंड इज हम कितने यूनिट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं मैक्सिमम. उसके अकॉर्डिंगली फिर हम सेलिंग प्राइस को कंसिडर करेंगे अपने डिसीजन में. जितने यूनिट्स हम बना सकते हैं उनके उतने यूनिट्स तक हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं. 1500 से ज्यादा बना सकते हैं तो तीनों ओपन ऑप्शन है. उससे कम बना सकते हैं तो अकॉर्डिंगली कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास ओपन है. सो फॉर दैट नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट द स्पेयर कैपेसिटी. हमें दोनों डिपार्टमेंट्स की, डिपार्टमेंट 4 और 5 की स्पेयर कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी. एक्चुअली इट्स द सेम ना. दोनों में बोला है हम 2 दिन हफ्ते में काम नहीं कर पाते. इन बोथ द डिपार्टमेंट्स इट सेड दैट 3 डेज के लिए तो हमारे पास इनफ वर्क है, 2 दिन के लिए हमारे पास वर्क नहीं है. सो वी कैन से स्पेयर कैपेसिटी ऑफ बोथ
डिपार्टमेंट्स 4 and 5 2 days every week, and we have 50 weeks per annum, and per day we are working for 8 hours. So that means 800 hours. Yeah, 800 जितना हमारे पास स्पेयर है इन डिपार्टमेंट 4 एज वेल एज इन डिपार्टमेंट 5. अब देखें इन 800 आवर्स में कितना पॉसिबल है हमारे पास प्रोडक्शन करना. मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कंसिडरिंग डिपार्टमेंट 4. अगर डिपार्टमेंट 4 को हम कंसिडर करें तो एक यूनिट बनाने में 45 मिनट्स लगते हैं. तो 800 आवर्स में कितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं. 800 into 60 upon 45. (1066 में भी 1066 या 1067 इतने यूनिट्स हम ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट 4 कैपेसिटी. एंड व्हाट अबाउट डिपार्टमेंट 5. दोनों में से जो कम होगा वही हमारे लिए पॉसिबल होगा. अगर मान लो डिपार्टमेंट 5 से केवल 900 ही बना पाते हैं तो फिर आप इतने भी नहीं बना पाओगे. 900 पे ही आपको रोकना पड़ेगा. या अगर डिपार्टमेंट 5 से 1100 यूनिट्स बना सकते हैं तो भी आप 1067 से ज्यादा नहीं बना पाओगे, क्योंकि प्रोडक्शन में आपको दोनों ही डिपार्टमेंट्स की जरूरत है. डिपार्टमेंट 5 में हमें लग रहा है 20 मिनट्स 2400. डिपार्टमेंट 5 में तो आप 2400 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकते हो, जबकि डिपार्टमेंट 4 में आप सिर्फ 1067 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हो. दैट मीन्स आपके लिए 1067 से ज्यादा प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं है. अगर करोगे तो डिपार्टमेंट 5 वाला प्रोडक्शन प्रोसेस तो हो जाएगा, 4 वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा. WIP आपकी पाइलअप हो जाएगी. सो वी कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ऑफ 1067 यूनिट्स. दैट मीन्स मैक्सिमम हम 1067 यूनिट्स ही बनाएंगे. नाउ व्हेन वी आर एबल टू प्रोड्यूस 1067 यूनिट्स, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है. तो हम अगर 100 रुपीज पे बेचते हैं, डिमांड 1500 हो जाती है. वी कैन सप्लाई 1067. डिमांड बढ़ रही है, जरूरी नहीं हम पूरा ही सप्लाई करें. दैट मीन्स हम 100 रुपीज भी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, तब हमारी सेल्स क्वांटिटी 1067 हो जाएगी. अगर 110 डिसाइड करते हैं, सेल्स क्वांटिटी 1000 ही रहेगी. और अगर 120 डिसाइड करते हैं, सेल्स क्वांटिटी 500 हो जाएगी. दीज विल बी द 3 ऑप्शंस विथ अस. स्पेयर कैपेसिटी जो बचेगी इसके बाद वो डिपार्टमेंट 5 में बच रही है. आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 1067 यूनिट्स जो भी स्पेयर बचेगा डिपार्टमेंट 5 में बच रहा है, अगर हम ये पूरा प्रोडक्शन करते हैं तो. अगर आपको कॉम्बिनेशन करना है ना दोनों ऑप्शन का, कि जो बचा वो हायर पे भी दे दिया, जितना प्रोडक्शन पॉसिबल है उतना कर दिया और बाकी का हमने हायर पे दे दिया. 1067 यूनिट्स अगर आप बनाते हो तो आप डिपार्टमेंट 4 की पूरी कैपेसिटी यूज कर रहे हो, आप उसे हायर पे नहीं दे सकते. डिपार्टमेंट 5 की कैपेसिटी आप आधी यूज कर रहे हो, 2400 ही बना सकते थे, हम उसमें से सिर्फ 1067 ही बना रहे हैं. यहाँ पर स्पेयर है कैपेसिटी, लेकिन डिपार्टमेंट 4 में कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है, तो हम इसको हायर पे देंगे नहीं. भले ही दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे, उससे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है. हाँ, अगर 1067 से कम क्वांटिटी हम बनाए, से हम 1000 यूनिट्स ही बना रहे हैं, सेकेंड वाला जो हमारा है सेलिंग प्राइस, या फिर हम 500 यूनिट्स ही बना रहे हैं, भले ही पॉसिबल ज्यादा है बट बिकॉज ऑफ दैट बीइंग मोस्ट प्रॉफिटेबल हम उतनी क्वांटिटी बना रहे हैं, तो बाकी का जो बैलेंस बचेगा डिपार्टमेंट 4 में आप उसके इक्विवेलेंट आवर्स को हायर पे दे सकते हो. डिपार्टमेंट 5 में नहीं देंगे, डिपार्टमेंट 4 में हम हायर पे देके एडिशनल कंट्रीब्यूशन उससे अर्न कर सकते हैं. आया समझ में? So now what all options do we have?